Hi everybody, I hope you are doing good. Welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. As you can see on the screen, today we are going to talk about some of the mistakes that generally an aspirant does while he is preparing for CLAT, ALET and other law entrance examinations. Okay, so before we proceed further, let me tell you that admissions are open. We are going to commence our new batch from 15 onwards. For more information, you can call us at 9971444054, and for more information on our courses, you can visit www.lawentrancindia.com. All right. So without wasting any time, let us discuss the common mistakes that an aspirant does. Okay. So one of the mistakes is not spending sufficient time with the newspaper. देखो हम बार बार अपने क्लासेस में कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो. व्हाट इज द रीजन ऑफ सेइंग दैट थिंग? देखो क्या है कि since when the pattern has been changed, it simply requires you a perseverance of reading for a longer time than usual. Okay, previously क्या हुआ करता था, you had some conventional question जिसमें one MCQ हुआ करते थे, but in this case now you have to have a passage, उसके बाद आपको उसे comprehend करना है and then answer the question within 120 minutes, that is 2 hours. और 150 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सो आप समझ सकते हो दैट इज नॉट अ वन डे गेम. तो ये जो डेवलप होगी परसिवरेंस, वो कैसे होगी? बाय रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे. इवन दो इट इज टेकिंग यू मोर देन 3 आवर्स टू रीड द न्यूज़पेपर, आप उसे पढ़े, क्योंकि दैट सिटिंग हैबिट, दैट सिटिंग कैपेसिटी इज नीडेड व्हेन यू आर गोइंग टू फेस द डी डे, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 पैसेज करने के बाद यू आर एग्जॉस्टेड मेंटली. ये होगा अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हो. सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट डज इज not spending a lot of time with newspapers. What we recommend for you is to sit with the newspaper, start with simple news. If you are not finding the news interesting, make sure that you start from the city news कि यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे चोरी हुआ, यहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए एक बच्चे ने अप्लाई किया था, ऐसा ऐसा हुआ. So start from the news that are interesting. Start from the news जैसे कि किसी को कुछ अवार्ड मिला. So when you start reading them, you will find it interesting, and day by day then go to editorial page if you find it boring. Okay. So the path you have chosen is based upon reading, reading and reading. When you become a lawyer, when you end up becoming a good lawyer, you will find yourself at a place where you have to read a lot. So you cannot ignore this fact that you will not read newspaper. So we recommend you to read newspaper a lot. Second mistake that student does is procrastination or noting down the vocabularies. Okay, तो क्या होता है, कभी कभी आप पढ़ते हो, आपको चीजें समझ आती है, कुछ नहीं भी समझ में आती है, and you are thinking like अभी बहुत समय है. ऐसा कुछ नहीं है. From the very first day when you started reading newspaper, make sure that you are making points and you are noting down the words that you do not know. इससे क्या होगा, आप पाइल अप करते चले जा रहे हो कि हाँ मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल कर लूंगा, दोनों एक साथ कर लूंगा, 50 इसके लिखूंगा, 50 उसके लिखूंगा. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग डाउन द वर्ड्स एट द वेरी सेम टाइम व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर. और नोट डाउन करने के बाद एक बार मीनिंग आपने फिर से निकाल लिया, एंड मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग अगेन विद द मीनिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड. एटलीस्ट एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आप इतना नहीं पढ़ोगे आदत डेवलप नहीं होगी. एंड अनलेस यू इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, ये एक दिन में नहीं होगा, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं. ठीक है, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोक्रेस्टिनेशन ऑन नोटिंग डाउन द वर्ड. सो इफ यू आर डूइंग सो, stay alert and start noting down the word from the day I have told you this message. Mistake number 3 that a student does is solving the questions before comprehending the passage properly. क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है अरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो क्लास 5 से करते चले आ रहे हैं, चलो थोड़ा सा समझ में आया आंसर करना शुरू कर दे. This will create a problem for you when you are not reading and understanding the passage well and answering the question. So what we recommend you to do is read the passage well. First go through the question and then read the passage well. इसी के लिए मैं हर महीने एक क्वेश्चन ऑफ द मंथ सीरीज बनाता हूं, जिसमें मैं अगेन एंड अगेन आई एक्सप्लेन यू दिस इज द वे यू कैन डू दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. ओके, तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इन दैट वे. आप जब तक ना समझ जाओ, देखो जब तक एग्जाम है आपका इन द मंथ ऑफ मे, अभी आपके पास समय है. ठीक है, सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. ऐसा ना सोचो कि नहीं समय खराब हो रहा है. इफ यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन समथिंग, है ना, वो आपको कहीं ना कहीं से प्रिपेयर कर रहा होगा. इवन दो यू थिंक कि नहीं मुझे नहीं लगता ये मुझे प्रिपेयर कर रहा है. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. देखो क्या होता है कि जब आप किसी पत्थर पे एक हथौड़ा मारते हो तो देयर इज नो साइन कि ये टूटने वाला है, बट
5वें हथौड़े पे शायद वो टूट जाता है। सो क्या लगता है आपको, वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट अनफ्रूटफुल? क्या उसको नहीं किया होता तो वो टूटता नहीं? दैट वाज हेल्पफुल। वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो जरा सा भी नहीं दिखता कि ब्रेक आए हैं, पर वो कहीं ना कहीं से उस पत्थर को कमजोर करते हैं। इसी तरह व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अंडरस्टैंड द पैसेज अनलेस डिसाइड इट, कि जब तक मैं इस पैसेज को पढ़ के समझ नहीं लूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इवन दो इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम। डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, अभी हाथ में समय है। ओके, सो डू नॉट डू इट। इफ यू आर डूइंग इट, मेक श्योर कि आप प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे जाके, एंड लास्ट में क्या होगा, हैसल हो जाएगा। वी डू नॉट वांट फॉर यू दैट। ensure that you are reading the passage well and then answer the question. The fourth mistake that generally student does is not making specific detail in the question. ये बहुत ही silly mistakes के अंतर्गत आता है, जिसमें स्टूडेंट से पूछा जाता है कि what is the synonym of this word, and some student mark it एज एन एंटोनिम। कभी कभी एंटोनिम पूछा होता है, वो सिनोनिम लगाकर चले जाते हैं। कभी कभी बोला होता है कि नॉट गिवन इन द पैसेज, और वो मार्क करके चले जाते हैं जो ऑलरेडी गिवन है। सो मेक श्योर कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे हैं, उस समय आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें स्पेसिफिक डिटेल होते हैं, इस तरह के लाइक आंसर द सिनोनिम, आंसर द एंटोनिम, इफ इट इज गिवन नॉट, एंड समटाइम्स योर ओपिनियन हैज बीन आस्क्ड, समटाइम ऑथर्स ओपिनियन हैव बीन आस्क्ड। तो ये सब ध्यान में रखते हुए यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। Do not make this fourth mistake. And moving on to the mistake number 5 that generally student does is not solving previous year question paper. देखो ये बहुत ही ज्यादा important हो जाता है आपके लिए when you are preparing for irrespective of any examination. अगर आप जुडिशरी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, if you are preparing for UPSC, if you are preparing for SSC, if you are preparing for any CLAT, any law entrance examination और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो माइलस्टोन की तरह काम करती है। वो आपको बताती है कि दीज आर द नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट जनरली आर asked. So इसीलिए when we were curating this the study material of manual law classes, we have ensured that the 10-year paper have been bifurcated well and explained well so that सारे स्टूडेंट्स को समझ में आए कि ये रहा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो डू नॉट मिस आउट दिस थिंग। अगर आपको लगता है कि बिना इसके किए हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बट जो क्लैरिटी माइंड में होगी वो शायद नहीं होगा। ठीक है, सो इंश्योर दैट यू आर सॉल्विंग दिस previous year question papers. Moving on to the next mistakes, that is 6th, ignoring aptitude and reasoning skills. ये तो आपको लगता होगा सर ये क्यों important है? Why is this reasoning skill or aptitude is important? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी एग्जाम में रीजनिंग, मैथ्स ये सब क्यों डाला होता है? दिस इज नॉट द केस कि आपको वो एलिमिनेट करना चाहते हैं। दिस इज द केस कि आप जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे डिसीजंस को लेते हो। ठीक है, लेट्स से यू आर गोइंग टू सिट फॉर क्लैट एग्जामिनेशन एंड आपकी रीजनिंग स्किल इंप्रूव्ड नहीं है, तो आपको टाइम लगेगा ज्यादा इन कंपैरिजन टू अ स्टूडेंट हु हैज बेटर रीजनिंग स्किल देन यू। इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर नॉट इग्नोरिंग दिस पार्ट ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। अगर आपको लगता है मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, अभी आपके हाथ में समय है, स्टार्ट डूइंग इट। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता मैथ कि आप नहीं कर पाओ। Okay, I want to assure you that you have to start practicing reasoning and aptitude so that your mind gets sharper, and whenever you sit to solve any problem, you do it in a very proficient way. Mistake number 7 that the student is taking exam lightly. देखो ये बहुत ही फनी इंसिडेंट है जब मेरे साथ हुआ। वन ऑफ द स्टूडेंट केम टू मी और वो कहे सर मैं IIT JEE में नहीं गया क्योंकि मुझे वो बहुत टफ लगता था, इसीलिए मैंने क्लैट को चुना है क्योंकि ये वाला जो है 8 साइड का एग्जाम है और मैं आराम से निकाल लूंगा। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाट इज योर कमांड, हाउ इज योर कमांड ओवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड व्हाट इज योर ग्रामर स्किल, व्हाट आर योर अदर स्किल्स ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग, वो कहा सर वो तो मैं कर लूंगा क्योंकि ये ईजी होता है। तो स्टूडेंट हैज दिस प्रिजम्पशन कि क्लैट एग्जाम या IIT JEE या नीट को छोड़ के अदर एग्जाम्स इजी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। All the examinations are considered to be difficult and they are meant to be difficult because seats are less. अगर 1 लाख एस्पिरेंट्स हैं जो किसी 2500 सीट्स पे बैठ रहे हैं, so make sure that nature of exam will be difficult. So do not take this examination lightly. Work harder than usual you used to do. Okay. So meet students who are preparing for NEET, AIEEE or any other examination and see how dedicatedly they study. आप कम से कम उनके जैसा तो पढ़ना शुरू करो, and when you start reading that you will definitely see the results. So I want to tell you that do not take this examination lightly and make sure you are putting your best you can do. Moving on to mistake number 8, that is not making health priority.
देखो क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड ये वाला जो सिचुएशन है, दिस हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कंसीडर्ड स्टूडियस स्टूडेंट। ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व होता है, ही इवन डज नॉट care about his eating time, he even does not care about going to exercise। उसे लगता है नहीं, whole time I have to study and study। ultimately होता क्या है, one month 2 months you start getting some kind of weakness, you start getting you start losing your concentration and all। so क्या करना चाहिए according to me is, आपको सुबह एक्सरसाइज कर लेना चाहिए थोड़ा, और शाम में वॉक कर लेना चाहिए, एंड इंश्योर दैट योर ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम एंड डिनर टाइम इज सेट। मम्मा अगर आपके लिए खाना ला के दे रही है, ऐसा नहीं कहो मम्मा मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। मेक श्योर यू आर ईटिंग एट द राइट टाइम सो दैट योर बॉडी ऑल्सो मेंटेन्स इटसेल्फ and gives you productivity। okay, so do not think that health is not a priority when you are preparing for examination। health should always be priority। if you do not prioritize your health, you will end up getting sick, and it will somehow affect your preparation। so moving on to mistake number 9, that is do not have a clear picture in mind for future। कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो बस यूं ही कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो क्लैट का फॉर्म भर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड कि मुझे आगे जाकर क्या बनना है, आप कैसे स्ट्रगल करोगे, कैसे हार्डवर्क करोगे। सो मेक श्योर वट एवर यू हैव डिसाइडेड इन योर माइंड दैट आई हैव टू बिकम अ जज, आई हैव टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर, आई हैव टू गेट अ जॉब इन PSUs, ये सारी पिक्चर्स को सामने रखो एंड मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग हार्ड एनफ सो दैट यू कैन मेक इट। क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि आप बड़े आराम से पढ़ते हो और चीजें आपके लिए हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट मिस्टेक दैट आई वांट टू कन्वे हियर, अ chaotic schedule with no specific deadlines। the biggest mistake a student does is not having a proper schedule of how is he going to study। एक स्केड्यूल होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि समय से खाना खाना, समय से एक्सरसाइज करना और समय से किसी काम को करना। एकदम ब्रेकडाउन के साथ होना चाहिए, स्पेसिफिक एजेंडा होना चाहिए दैट इट शुड बी आई विल कंप्लीट दिस थिंग बाय मंडे 7 PM। इतना ज्यादा इसे स्पेसिफिक बनाओ, बट मेक श्योर इट शुड बी रियलिस्टिक, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। ओके, सो आज आपको क्या करना है, यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं इन सभी गलतियों में से करता हूं ऐसी गलती जो सर ने आज मुझे बताया। दीज आर नॉट द लिमिटेड मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट डज। ऐसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स हैं जो जनरली एक क्लैट एस्पिरेंट करता है। अगर आपके सामने भी ऐसी कोई भी मिस्टेक्स आ रही है जो आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेक श्योर दैट यू कमेंट बिलो कि आप कौन से मिस्टेक्स कर रहे हो या आपका जो फ्रेंड है वो कौन सा मिस्टेक कर रहा है। वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। We will try to help you by answering the question written in the comment box। फाइनली मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि एक टेक होम मैसेज ले जाओ। आज लिखा हुआ है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कैन नॉट लिव लॉन्ग एनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। ये एक बहुत ही फेमस ऑथर ने इस बात को कही है कि देखो, दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि खुद पर गलती एक्सपेरिमेंट करने में लाइफ कम पड़ जाएगी। तो आज हमने जो भी मिस्टेक्स को डिस्कस किया है यहाँ पे, इंश्योर यू आर राइटिंग इट समवेयर एंड आस्किंग योरसेल्फ कि क्या आप इस तरह के मिस्टेक्स को कर रहे हो। अगर नहीं तो गुड फॉर यू, अगर आप कर रहे हो तो स्टार्ट वर्किंग ओवर दिस। At last, I would like to convey that we have a Telegram channel. You can find it on Telegram by Manulaw Classes Legally Yours. Make sure that we provide some complimentary passages every day of different subject at 10 PM and that we provide you answer at 5 PM that are gonna be very, very helpful for your exam preparation. Even though you are a student of MLC or not, you can join the channel and get benefited by solving those passages। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। जो गलतियां हमने इसमें डिस्कस करी हैं आप उसमें काम करना शुरू करेंगे, एंड ऑल्सो यू विल बी शेयरिंग दिस वीडियो विद अदर एस्पिरेंट्स हु यू थिंक कि ये भी वो गलतियां कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।